चलो. So after understanding the basic structure of local government, which was a part of your junior classes, I am trying to explain you because in the middle of the chapter we will require the knowledge of local governments at the rural areas also and urban areas also. And relating to the urban areas, I will teach you later on. Municipalities का क्या division होता है? This was a division which I have shown you of the local governments. But now directly come to the chapter and introduction part of the chapter. So see it from your book. In a democracy, it is not sufficient to have an elected government at the central and the state level. They are saying if we are living in a democratic country, it is not enough that we are having a क्या कहते हैं government at the central and the state level. क्यों? मैंने एक टर्म बताई थी कल यहाँ पर. That was क्या बताई थी? किसका डिसेंट्रलाइजेशन? पावर का डिसेंट्रलाइजेशन. Where I told you there are three type of lists: union list, state list and concurrent list. So it is important कि पावर्स का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. That is why we are studying local government. इनको भी कुछ इंडिपेंडेंट पावर्स होनी चाहिए because from the base level ही हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो सकता है. इसी के लिए हमारा लोकल गवर्नमेंट बनना है. ठीक है. It is also necessary that even at the local level there should be an elected government. पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती थी. पहले किसकी लिस्ट के अंडर आता था लोकल गवर्नमेंट? स्टेट लिस्ट के अंडर आता था एंड इट वाज अप टू द स्टेट वो गवर्नमेंट बनाए या ना बनाए, इलेक्शन करके बनाए या डायरेक्टली इनडायरेक्ट इलेक्शन से वो किसी को भी अपॉइंट कर दे. इट वाज ऑल अप टू द स्टेट. बट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1992, दैट वाज द 73rd अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टू हैव लोकल गवर्नमेंट. एंड कैसी लोकल गवर्नमेंट? इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट. इसमें प्रॉपर इलेक्शंस होंगे जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं. ठीक है. It is also necessary that at even local level there should be an elected government to look after the local affairs. वो मैंने बता दिया था local government की जरूरी है कि local affairs, local problems जो भी है, best understanding, close understanding उसकी किसको हो सकती है? local government के members हो सकती है. state government या central government के leaders को नहीं हो सकती है. ठीक है. You will also study the importance of local government. So basically in this chapter हम वो division नहीं पढ़ने वाले हैं. That you have studied in your junior classes. Here we will understand why local government is important. We will study various dimensions to understand the factor that why local government is important, and that is why this is a part of the syllabus. कि local government हर बच्चे को पता होना चाहिए. Why it is important? क्योंकि ये government की होती है जो हमारे सबसे ज़्यादा close होती है. ये भी मैंने आपको उस दिन बता दिया था. You will also study the importance of local government and way to give them independent powers. और क्यों हमें जरूरी है इनके पास independent powers होनी चाहिए. तो हमने कब दिए उन्हें वो independent powers? In the year 1992 by the amendment of 73rd amendment of the constitution. So after go through this chapter and understanding the chapter, कुछ concepts आपके clear होंगे and those concepts are the importance of local government bodies. If anybody asks you what is the importance of having a local government in place, so you will be able to give multiple reasons कि क्यों होनी चाहिए as a student. ठीक है. अभी नहीं दे पाओगे but after this chapter इसको पढ़ लेंगे आप बता पाओगे. फिर the provisions made by 73rd and 74th. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा 73rd and 74th अमेंडमेंट क्या है. और जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं if you are studying under the chapter local government, it means वो कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है? लोकल गवर्नमेंट से. तो याद रखना जब हम 73rd और 74th बोल रहे हैं तो इजी है आप करेंगे. 73rd किससे रिलेटेड है? लोकल गवर्नमेंट से. और 74th किससे है रिलेटेड? अर्बन गवर्नमेंट. ठीक है. लोकल गवर्नमेंट बोल रहा हूँ ये रूरल. ठीक है. रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट लोकल लेवल पे जो हमारी रूरल गवर्नमेंट है उसके हम पढ़ेंगे 73rd अमेंडमेंट. और लोकल लेवल पे जो हमारी अर्बन गवर्नमेंट है उसके लिए हम पढ़ेंगे आर्टिकल 74. तो ये रूरल अर्बन गवर्नमेंट और ये रूरल और अर्बन. तो ये भी हमें समझ आएगा. एक लास्ट वन मोर थिंग व्हिच वी विल अंडरस्टैंड इज फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट. हमने लोकल गवर्नमेंट बना दी बट व्हाट आर देयर फंक्शंस एंड व्हाट आर देयर रिस्पांसिबिलिटीज. Why we have elected them, why we have formed local government, why we had these amendments, what is the importance and significance of these amendments. इनको हमने क्यों बनाया है, क्यों लोकल गवर्नमेंट कंपलसरी किया है स्टेट को सिचुएट करना, इसलिए हम समझेंगे इसकी रिस्पांसिबिलिटीज और फंक्शंस क्या है इन दिस चैप्टर. सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर हियर इज व्हाई लोकल गवर्नमेंट. तो पहला क्वेश्चन आपसे वही पूछ सकता है लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्या है. स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनकी अलग अलग पॉलिसीज हैं, प्लान्स है, इस लिस्ट है अलग अलग. कौन कौन सी लिस्ट है हमने बता दिया. यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है. तो उसके अकॉर्डिंग काम तो चल ही रहा है. तो लोकल गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत क्या है. तो उसमें हम ये आंसर समझते हैं. सो देयर आर टू एग्जांपल्स गिवन इन योर बुक. टू फीमेल्स हैं. ठीक है. उनके अलग अलग वो पंचायत अपने पंचायत की सरपंच है. तो उन्होंने क्या क्या काम किया है अपनी सरपंच अपनी पंचायत के लिए विलेज लेवल पर उन्होंने क्या डेवलपमेंट के वर्क किए हैं
उसकी हम स्टोरी देखते हैं तो हमें समझ आएगा कि वाई लोकल गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पहली लेडी है, स्टोरी सुन लो। गीता राठौर बिलोंग टू जमुनिया तालाब ग्राम पंचायत सेरा डिस्ट्रिक्ट। ये छोड़िए, गीता राठौर एक लेडी है, आपको याद रखना है वो एक विलेज की पंचायत है। ग्राम पंचायत की मतलब सरपंच है, प्रेसिडेंट है, और वो विलेज कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। और डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या? सेवर। और विलेज का नाम है जमुनिया तालाब। शी वॉज इलेक्टेड सरपंच, तो वो सरपंच बनी थी। सरपंच पता नहीं कैसे बनते हैं, विलेज लेवल पे मैंने इलेक्शन बताया था। 18+ जो भी लोग होते हैं उसमें ग्राम सभा के लोग वोट देते हैं और अपने सरपंच को इलेक्ट करते हैं और अपने पंच को भी इलेक्ट करते हैं। और गांव कैसे डिवाइड हो जाता है इलेक्शन के लिए? गांव किसमें डिवाइड हो जाता है? किसमें डिवाइड होता है गांव? इनको क्या बोलते हैं? तो गांव भी वार्ड से बन जाता है। हर वार्ड से कितना मेंबर निकलते हैं? एक मेंबर। मान लो यहाँ पे 7 मेंबर थे, 7 मेंबर बन गए। फिर यहाँ पे जो इलेक्शन होता है उससे एक और हम इलेक्ट करते हैं, मिलाकर के वो क्या बनता है? सरपंच। सरपंच और ये जो 7 बनते हैं ये क्या बोलते हैं हम? पंच। और ये सरपंच। तो ऐसे ही जो सरपंच वाली पोजीशन है वो किसकी है? गीता राठौर, जो किस विलेज की है? जमुनिया तालाब। और कौन सी स्टेट की बात हो रही है? मध्य प्रदेश की। तो इन्होंने क्या किया? शी वॉज इलेक्टेड सरपंच इन 1995 फ्रॉम अ रिजर्व सीट। कुछ सीट्स होती है रिजर्व फीमेल्स के लिए, तो ये रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ा था और सरपंच बन गई थी गीता राठौर। बट इन 2000 द विलेज पीपल रिवॉर्डेड हर फॉर हर एडमायरेबल वर्क। कितने साल बाद इलेक्शन दोबारा होता है? 1995 में हुआ था, फिर 5 साल बाद हुआ 2000 में इलेक्शन फिर से हुआ न्यू पंचायत के लिए। जब न्यू पंचायत के लिए इलेक्शन हुआ तो फिर से वो इलेक्ट होकर के आती है। कौन? गीता राठौर। पर इस बार रिजर्व सीट से नहीं, इस बार उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे रीजन देखना है कि वो दोबारा से इलेक्ट क्यों हुई है, वो लोगों की पॉपुलर चॉइस क्यों बनी है, उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा। लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया, दोबारा से 5 ईयर तक वो रही, दोबारा इलेक्शन हुआ, दोबारा से 5 ईयर के लिए अगर हम उन्हें इलेक्ट कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ पर्पस रहा होगा, कुछ रीजन रहेंगे। लेट्स सी दोस रीजंस। The village people rewarded her for her admirable work. उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, डेवलपमेंट वर्क किया उस विलेज में, by electing her again. This time for a non-reserved seat. For her housewife, from a housewife, Geeta was grown into a leader displaying political far-sightedness. एक वो हाउसवाइफ थी पर उन्होंने अपनी स्किल्स को दिखाया एज अ पॉलिटिशियन। उन्होंने अच्छे से काम किया, उन्होंने दिखाया कि मैं पॉलिटिक्स में क्या क्या कर सकती हूँ। ठीक है। Geeta has grown into a leader displaying political far-sightedness. She had harnessed the collective energy of her panchayat to renovate. अब उन्होंने काम क्या किया? रेनोवेट किया। सबसे पहले गांव का क्या टैंक होता है, वेल होता है, जो उसको अच्छे से बनाया ताकि वाटर की प्रॉब्लम ना हो। वाटर टैंक्स, बिल्ड अ स्कूल बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए, एक स्कूल बिल्डिंग बनाया। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन द विलेजेस में जितनी रोड्स थी उनको रिन्यू किया, बनवाया, बजट पास करवाए। फाइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। और विलेजेस में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहता है मेल्स का, फीमेल्स को सप्रेस किया जाता है, तो जिन जिन घरों में डोमेस्टिक वायलेंस था उन फीमेल्स को सपोर्ट किया सरपंच ने, ताकि उनके साथ ऐसी एक्टिविटीज या उनके साथ इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है। देन एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन्स, वुमेन्स को मारा पीटा जाता था, उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था उन सब के अगेंस्ट सरपंच ने अलग अलग एक्शंस लिए। उस एरिया का ऑटोमेटिकली हम देखेंगे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट गीता राठौर ने किया विद इन 5 years। रोड्स बनवाई, पानी दिलाया, स्कूल की बिल्डिंग्स, पर्सनल लेवल पे जो फीमेल्स डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रही थी, 8th में आप लोगों का पढ़ा हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब, तो इन सब के ऊपर उसने एक्शंस लिए हैं। दैट इज व्हाई शी बिकेम अ पॉपुलर चॉइस फॉर द इंटायर ग्राम सभा। जितने 18+ लोग थे उन्होंने बोला नहीं, अगेन वी विल इलेक्ट द सेम सरपंच। उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है डेवलपमेंट। ठीक है। क्रिएट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, एक चीज और इसके बारे में सोचता है, उन्होंने गांव में इन्वायरमेंट को कैसे बैलेंस रखना है, हमें पॉल्यूशन नहीं करना है, वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे साउंड पॉल्यूशन हो, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, कटिंग ऑफ ट्रीज हो, डिफॉरेस्टेशन हो, इन सब को उन्होंने बंद किया। इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए। अफॉरेस्टेशन किया। अफॉरेस्टेशन क्या होता है? प्लांट्स को लगाना रेनी सीजन में बेसिकली, ये सब प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए। एंड इनकरेज एफॉरेस्टेशन, वाटर मैनेजमेंट इन आवर विलेज, हाउ वी कैन प्रिजर्व वाटर। वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, अगर विलेज में हमें वाटर इजीली मिल रहा है, वी डोंट हैव टू वेस्ट इट। कैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सब प्रोग्राम्स अपने विलेज के अंदर लेकर के आए हैं। ठीक है। तो हम समझ, तो यहीं पे ये इनकी स्टोरी खत्म होती है। तो हम समझ सकते हैं पंचायत लेवल पे, ग्रास रूट लेवल की जो लोकल गवर्नमेंट होती है, एट दैट लेवल उन्होंने कितने ज्यादा सोचा, डायमेंशन देखिए उनके माइंड की, हर लेवल पे। ज्यादा कोई क्या सोचेगा, रोड बनवा दूंगी, ठीक है, राशन कार्ड्स बनते हैं वो बनवा दूंगी। उन्होंने सोचा इन्वायरमेंटल की अवेयरनेस लोगों के अंदर होनी चाहिए, वाटर को कैसे हमें सेव करना है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसके लिए क्या मैनेजमेंट होना चाहिए विलेज के अंदर, वो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में सब सोचता है। ये तो
आपका पर्सनल मैटर है, व्हाई शुड वी स्पीक, बट एज अ सरपंच ऑफ द विलेज शी हैड मेनी पॉलिसीज जिसकी वजह से किसी फीमेल के साथ ऐसी एक्टिविटीज ना हो, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट की उन्होंने बात की, तो ठीक है, तो ये हो गया। इस स्टोरी को याद रखना, चैप्टर में काम आएगी समझने के लिए कि व्हाई लोकल गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब सेकंड स्टोरी है, वो भी फीमेल की है, विलेज डिफरेंट है, ये साउथ इंडिया का है, ये हमारा नॉर्थ इंडिया का सेंट्रल इंडिया का पार्ट था, अब हम तमिलनाडु की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। दिस इज अनदर स्टोरी ऑफ येट अनदर वुमेन अचीवर, शी वाज द प्रेसिडेंट, सरपंच, ये भी मतलब विलेज लेवल की बात हो रही है, सरपंच ऑफ अ विलेज इन तमिलनाडु मान लो, ठीक है। अलॉटेड 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, सॉरी, ठीक है, सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत ऑफ वेंगवसल विलेज ऑफ तमिलनाडु, तो ठीक है, ये तमिलनाडु की सरपंच थी। अब एक इवेंट होता है 1997 में, क्या होता है, तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं, विलेज लेवल की बात कर रहे हैं, बट जो तमिलनाडु की स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या था, तमिलनाडु गवर्नमेंट अलॉटेड इनटू हेक्टेयर्स 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड टू 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तमिलनाडु के कुछ एम्प्लॉयज थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उनको उन्होंने 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड अलॉट कर दिया घर बनाने के लिए या किसी भी रीजन की वजह से, कि ये गवर्नमेंट के जो लोग हैं तमिलनाडु की, उनकी प्रॉपर्टी है। पर उस लैंड में का कुछ पार्ट, सपोज ये 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड किसको दे दिया हमने, एम्प्लॉयज ऑफ तमिलनाडु को दे दिया गवर्नमेंट ने। पर मान लो ये विलेज था, जिस विलेज की हम बात कर रहे हैं, विलेज का कुछ पार्ट किसके अंदर आ रहा है, बाइफरकेट हो रहा है, ठीक है, कनेक्ट हो रहा है, ये एरिया गवर्नमेंट ने दे दिया, पर ये एरिया था किसके अंदर, ओरिजिनली विलेज के अंदर था। बट अगर यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं होती और ये फीमेल सरपंच नहीं होती, तो ये एरिया गांव का किसके पास चल जाता, स्टेट गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को दे देती। पर तभी हम पढ़ रहे हैं कि व्हाई लोकल गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये देखेंगे, ये लड़ेंगे इस एरिया के लिए, सरपंच प्लस ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत along with the people of this village, कि ये एरिया किसको बिलोंग करता है, इनको बिलोंग करता है, इस विलेज को बिलोंग करता है। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक दिस पार्ट ऑफ द एरिया, उसको हम देख रहे हैं। तो हम इन 2 स्टोरी से देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल पे जो हमने सरपंच पढ़ा वो डेवलपमेंट हो पाता उस विलेज में, उस लेवल पे अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट, वुमेन को प्रोटेक्ट करना, वुमेन एम्पावरमेंट, रोड बिल्डिंग बनना, इतना ज्यादा डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाता। दूसरे एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, इसको कोई प्रोटेक्ट नहीं, गवर्नमेंट आती इसको आराम से ले लेती, कोई कुछ भी नहीं बोलता इस विलेज से, अगर लोकल गवर्नमेंट पावर में नहीं होती, क्योंकि ये तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हुआ करता था ना पहले। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। द पीस ऑफ लैंड फेल इन द विसिनिटी ऑफ दिस ग्राम पंचायत, विसिनिटी मतलब इस एरिया के अंदर आ गया, गांव का कुछ पार्ट, ठीक है। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द हायर अथॉरिटीज, फिर जो हायर अथॉरिटीज थी उन्होंने ऑर्डर दिया इस ग्राम पंचायत को कि ये एरिया खाली करके किसको दे दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए। बट यहाँ की ग्राम सभा ने इनका डिसीजन ना मानते हुए केस कर दिया एंड दे फाइल्ड अ पिटीशन, उन्होंने इसके लिए केस लड़ने की सोची और उन्होंने अपना केस हाई कोर्ट में या डिफरेंट कोर्ट्स में डाला, ठीक है। इसके दिखाई देखिए, ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ द कांचीपुरम डायरेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत टू पास अ रेजोल्यूशन endorsing the allotment of the said land to the purpose already decided. The president and the Gram Panchayat refused to pass such an order and collector issued an order to acquire the land. सब इस ग्राम पंचायत के अगेंस्ट हो गए, कलेक्टर हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ऊपर से जो कोर्ट्स आ गए, ऑर्डर आ गया कि ये स्पेस खाली करनी है, बट यहाँ की ग्राम पंचायत ने अपने लैंड को खाली नहीं किया और उन्होंने इसके लिए लड़ाई करी और लास्ट में ये लैंड किसको मिल जाता है, विलेज को मिल जाता है। तो इसके एग्जाम्पल में उस दिन हम नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप थोड़ा तेज चलेंगे तो हो जाएगा चैप्टर में। तो हम ये देखेंगे कि कैसे ग्राम सभा की अवेयरनेस की वजह से एक विलेज का ये जो पार्ट जो इजीली स्टेट ले सकती थी, बट विद अवेयरनेस ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, या हम बोल सकते हैं जो पंचायत यहाँ पर हेड थे सरपंच, उन्होंने कैसे प्रोटेक्ट किया विलेज के इस एरिया को। उसी के थ्रू हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं होती दोनों एरियाज में, तो ये प्रोटेक्शन या ये डेवलपमेंट्स नहीं हो पाते, ठीक है। विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। Okay. So we were discussing about the another सरपंच of another village, तमिलनाडु की। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, गवर्नमेंट ने क्या 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड किसको दे दिया था, टू द 71 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। दिस पीस ऑफ लैंड फैल्ड विद इन द विसिनिटी ऑफ द ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की जो प्रॉपर्टी उसके अंदर ये 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड मर्ज हो गया था। ऑन द इंस्ट्रक्शंस of the higher authorities, the district collector of the Kanchipuram directed president of the ग्राम पंचायत। तो जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर कौन होता है, हमने ब्लॉक लेवल में पढ़ा था, ब्लॉक प्रमुख होता है जैसे, वैसे ही जो किसी डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किसको ऑर्डर दिया, क्योंकि उसके नीचे पोस्ट में कौन है, सरपंच ऑफ द विलेज।
कि ये वाला एरिया किसके अंडर आ रहा है, गवर्नमेंट के अंदर आ रहा है, और इसको हम दे रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं टू द 71 एम्प्लॉयज ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो इस एरिया को खाली करने के लिए बोला गया, ठीक है। उसने ये भी बोला ग्राम पंचायत को कि एक रेजोल्यूशन पास करो जिसमें तुम ये बोलोगे कि ये किसी गवर्नमेंट पर्पस की वजह से ये वाली प्रॉपर्टी किसके पास जा रही है, गवर्नमेंट के पास जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। द प्रेसिडेंट एंड ऑफ द ग्राम पंचायत, अभी जो सरपंच थी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट थी ऑफ द ग्राम पंचायत रिफ्यूज टू पास सच एन ऑर्डर, उसने रिफ्यूज कर दिया इतने बड़े ऑफिसर को, कलेक्टर जो थे लीडर, कि आई एम नॉट गोइंग टू पास सच अ रेजोल्यूशन, जिसका ये मतलब हो कि ये जो ग्राम पंचायत की प्रॉपर्टी है, लैंड है, ये हम किसको दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। उसने मना कर दिया, ठीक है। ग्राम पंचायत फील्ड राइट और पिटीशन, उन्होंने एक कंप्लेन पोस्ट की इन द मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने एक केस लेकर के गए कौन, पंचायत, ठीक है, प्रेसिडेंट, अगेंस्ट द कलेक्टर्स एक्शन, जो कलेक्टर ने एक्शन लिया और उनको फोर्सफुली रेजोल्यूशन पास करने को बोला कि ये वाला लैंड रिटर्न में देना पड़ेगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने केस कर दिया एक हाई कोर्ट में मद्रास। द सिंगल जज बेंच ऑफ द हाई कोर्ट अपहेल्ड द डायरेक्टर्स ऑर्डर्स, तो अलग अलग बेंच होती है, एक जज होता है, दो जज होता है, तो ये छोटा सा केस था उनके लिए, तो एक जज बैठा और एक जज ने किसको सपोर्ट किया इसमें, कलेक्टर की, एज कलेक्टर इज सेइंग डू दैट बिकॉज़ ही इज डूइंग दैट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो इनका यहाँ पे जो कंप्लेन था उसका फायदा नहीं हुआ, तो इन्होंने और हायर लेवल पे अपने केस को प्रमोट किया, और इस बार एक से ज्यादा बेंच में जो ऑफिसर्स बैठते हैं, सॉरी जज बैठते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, द पंचायत अपील टू द डिवीजन बेंच, अभी बहुत सारे जजेस बैठते हैं एंड दे टेक द डिसीजन, द पंचायत अपील टू द डिवीजन बेंच अगेंस्ट द सिंगल जज ऑर्डर, इन दिस ऑर्डर द डिवीजन बेंच रिवर्स द ऑर्डर। अब जो ये डिफरेंट जजेस बैठे थे, इन्होंने इनकी बात को सुना और इन्होंने क्या बोला, जो प्रेसिडेंट जो सरपंच बोल रही है दैट इज करेक्ट, और जो कलेक्टर का डिसीजन है उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। And the judges had that the government order amounted not only infringement of the powers of the panchayat but a gross violation of the constitutional status। उन्होंने बोला यहाँ पे वॉलेशन हो रहा है किसकी पावर्स का, लोकल गवर्नमेंट की पावर्स का वॉलेशन हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सो स्टेटस ऑफ द पंचायत को उन्होंने मेंटेन रखा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे एक ग्राम पंचायत की प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का यूज करते हुए लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस दिखाई। अगर वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट नहीं होती तो वो लैंड इजीली कौन ले लेता, टुक ओवर कर लेते वो 71 स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, बट इन्होंने अपनी विलेज की जो प्रॉपर्टी थी, विंसिडेंटी में जो एरिया आ रहा था, दे प्रोटेक्टेड इट। तो इन दो एग्जांपल से हम क्या समझते हैं, ये हमें देखना है। एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट वो आपको क्या सिंबलाइज करना चाह रहा है, इन दो से एक्टिव पार्टिसिपेशन देख रहे हैं हम यहाँ पर। क्या देख रहे हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन तभी देख पा रहे हैं क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में जो हमने सरपंच बना रखे हैं, प्रेसिडेंट बना रखे हैं, ग्राम पंचायत हैं जिनको हम पंच बोलते हैं, वो इलेक्टेड है, उनको गवर्नमेंट ने कुछ पावर्स दी हैं इंडिपेंडेंट, तभी वो एक्शन ले पा रहे हैं, ठीक है। सो बोथ दीज स्टोरीज आर नॉट आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, these are representing a large transformation that is taking place across India, especially after constitutional status was accorded to the local government institution in 1993। ये बोल रहे हैं अगर ये 1993 में अमेंडमेंट नहीं हुआ होता, 1992 में सॉरी 93 में इम्प्लीमेंट हुआ था, यहाँ से ये एक्सेप्ट हो गया था 73rd और 74th अमेंडमेंट, अगर ये नहीं हुआ होता तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। देखिए वही लिखा हुआ है, they are the representing a large transformation, जो का ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में, it is taking place in India। इंडिया में ये सब हो पा रहा है because after the constitutional status was accorded to the local government institution in 1993। नेक्स्ट पेज पर लोकल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट एट द विलेज। अब ये आपको बेसिक था जो हमें इस चैप्टर में स्टार्टिंग से पढ़ना था, वो जो मैं बता चुका हूँ, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप कनेक्ट कर पाओगे। लोकल गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट एट द विलेज एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लोकल गवर्नमेंट इज अबाउट गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल। जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो गवर्नमेंट है जो सबसे क्लोज है लोगों के, बता दिया मैंने। लोकल गवर्नमेंट इज आल्सो अबाउट गवर्नमेंट दैट इन्वॉल्व्स डे टू डे लाइफ एंड प्रॉब्लम्स। व्हेन वी टॉक ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, उससे बड़े इश्यूज नहीं होते हैं, लोगों की डेली नेसेसिटीज क्या है, जरूरतें क्या है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन देयर डेली एक्टिविटीज, वाटर, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, क्लीननेस, दीज आर द इश्यूज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, ताकि जो बेसिकली लोग हैं वो कंफर्टेबली रह पाए। यही वर्क होता है लोकल गवर्नमेंट का। That is why it's written, local government believes that local knowledge and local interests are essential ingredients of democratic decision making। अगर हमें डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना है, डेमोक्रेटिक डिसीजंस लेने हैं, तो लोगों जो लोकल लोग हैं उनके ओपिनियन को कंसीडर करना जरूरी है। अब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज बना रही है, लेकिन उनको ग्राउंड लेवल पे पता ही नहीं है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल।
तो वो कैसे पॉलिसीज बनाएंगे? तो उनकी हेल्प करने के लिए कौन होती है? लोकल गवर्नमेंट्स होती है, क्योंकि पर्टिकुलरली लोकल गवर्नमेंट को ही पता होता है कि एट द ग्राउंड लेवल क्या प्रॉब्लम्स है उनके एरिया में लोगों की। वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी एरिया में शॉर्टेज ऑफ वाटर हो सकती है, किसी एरिया में शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, कहीं पे स्कूल बिल्डिंग्स नहीं हो, कहीं पे हॉस्पिटल का प्रॉब्लम हो, हेल्थ फैसिलिटीज ना हो, ठीक है, कहीं पे क्लीनिंगनेस की प्रॉब्लम्स ना हो, इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम हो। तो डिफरेंट एरियाज की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी वो कौन सामने ला सकता है? ओनली लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पता नहीं चल सकता है। तो अगर हमें डेमोक्रेटिक, हम बोलते हैं कि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे पीपल्स रूल है, एवरी सिटीजन इज इंपॉर्टेंट इन द डिसीजन मेकिंग, हर एक के ओपिनियन को सुना जाता है, तो वो कहाँ से इम्प्लीमेंट हो सकता है? बस लोकल गवर्नमेंट से। अगर सेंट्रल और स्टेट लेवल पे अगर बस हमें इलेक्शन देना होता तो हमें बस ये पता होता हमें वोट देना है, उनकी क्या प्लान्स बन रहे हैं, क्या पॉलिसीज बन रही है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें फॉलो करना है। बट एट अ लोकल लेवल हम जाकर बात भी कर सकते हैं अपने लोकल लीडर से कि दीज आर द प्रॉब्लम्स आई और या माय एरिया इज फेसिंग, तो इसका कोई सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तभी हमने एक टर्म और यूज पढ़ा था उसी, ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट, सबसे बेस लेवल और इंपॉर्टेंट, तो वहां से डेवलपमेंट होना शुरू होता है। इट इज अ कन्वीनियंट फॉर द पीपल, और लोगों के लिए बहुत आसान होता है, जो मैंने बताया कन्वीनियंट मतलब आसान, कंफर्टेबल। इट इज कन्वीनियंट फॉर द पीपल टू अप्रोच द लोकल गवर्नमेंट फॉर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स बोथ क्विकली विद मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एट द लोकल लेवल। अगर मुझे स्टेट गवर्नमेंट में जाना पड़े तो मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझे किसको अप्रोच करना है, मुझे क्या एप्लीकेशन लिखनी है, मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे कौन से ऑफिस में जाना है, ऑफिस के अंदर मुझे नहीं पता किस रूम में जाना है, वहाँ लाइन लगी होगी, किसको कोई मेरे से पैसे भी मांग सकता है टू डू दैट वर्क, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बट लोकल लेवल पे क्या मुझे पता है कि मेरे लीडर का घर कहाँ पर है, मैं जाकर के उनसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, ठीक है। It is convenient for the people to approach the local government for solving their problems both quickly with the minimum cost. In the story, अब हम कनेक्ट करें, जो स्टोरी थी, in the story of गीता राठौर, जो पहली फीमेल थी, उनका क्या है देखिए, in the story of गीता राठौर, we noticed that she was able to bring about a significant change in जमुनिया तालाब। अपने विलेज में वो ट्रांसफॉर्मेशन कर पाई, मतलब अपोजिट कर दिया उन्होंने। अगर ग्राउंड लेवल यहाँ पर था, इतने ऊपर ले आएंगे विलेज का डेवलपमेंट, ठीक है। जमुनिया बिकॉज ऑफ हर प्रोएक्टिव रोल, क्योंकि प्रोएक्टिव रोल वो अपना निभा पाई, जितने अवेयरनेस उनके अंदर आ सकती थी वो ला पाई एज अ सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत, क्योंकि उनको एक डेजिग्नेशन मिला हुआ था, एक पावर मिली हुई थी, उसका उन्होंने पॉजिटिव यूज किया एज अ सरपंच। और दूसरा विलेज था ये विंगान्य बसल विलेज, जो तमिलनाडु में था। इज स्टिल रिटेन इट्स लैंड, अपना लैंड जो जमीन थी उनके पास वो अपने पास बचा के रख पाए, एंड राइट टू डिसाइड व्हाट टू डू विद इट बिकॉज ऑफ द रिसेंट प्लान्स एफर्ट ऑफ द ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत की जो प्रेसिडेंट थी उनका बहुत ज्यादा एफर्ट हमने देखा, कैसे उन्होंने अपनी जमीन को प्रोटेक्ट किया। इजीली गिव अवे कर सकती थी, उनका कुछ नहीं जाता था, बट उन्होंने अपने अवेयरनेस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा था। क्योंकि तो हम इसके अंदर एक टॉपिक भी पढ़ेंगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उस लैंड को कैसे प्रोटेक्ट करे। हाई कोर्ट तक गई, एक हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, दूसरे हाई कोर्ट पे गई, ठीक है, मल्टीपल जजेस बैठे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि यस दिस इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द विलेज रीजन। फिर सो लोकल गवर्नमेंट कैन बी वेरी इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग द लोकल। इन दो एग्जांपल्स हमें लगता है, पता चलता है कि लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू प्रोटेक्ट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। लोकल पीपल का जो इंटरेस्ट है उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोकल गवर्नमेंट। तो बस वही नहीं है कि डेवलपमेंट, एक हमने लैंड को कैसे बचाया, उसकी भी हम देखते हैं कैसे पावर्स शेयरिंग हो रही है। डेमोक्रेसी इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं मतलब मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन। इट इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी। यस, डेमोक्रेसी की जब भी हम बात करते हैं इट इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस ले रही है, जो भी वर्क कर रही है, इट डज नॉट मीन कि उसमें लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। वी कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज टू आंसर। तभी वो अकाउंटेबल होती है कि वो क्या काम कर रही है, कितना रिसोर्सेज कहाँ लगा रही है, कितना पैसा कहाँ लग रहा है, उनको सब आंसर करना पड़ता है टू द अपोजिशन पार्टी और टू द पीपल। अकाउंटेबल होते हैं। Strong and vibrant local government ensure both active participation and purposeful accountability. Geeta Rathore story is one of the committed participation. Vingavesal village Gram Panchayat residents' effort to secure its right over its own land was an example of a mission to ensure accountability. तो ये आपको एग्जांपल दे रहे हैं accountability के और responsibility के। It is at the level of the local government that the common citizen can be involved in the decision making. एक ये लोकल गवर्नमेंट ही है जहाँ पर हम कॉमन मैन को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तभी मैंने उसे एक टर्म भी लिखाई थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं।
It is necessary that in a democracy, tasks which can be performed locally should be left in the hands of the local people. It is necessary that a democracy, tasks which can be performed locally, जो चीजें locally हो सकती हैं, should be left in the hands of the local people. कुछ ऐसे functions होते हैं like development at the local level, वो हमें state या central government के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, वो हमें किसको दे देना चाहिए, ट्रांसफर कर देना चाहिए टू द लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर लोकल गवर्नमेंट कर पाएगी, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी. Common people are more familiar with their local government than the government at the state or the national level. ये भी मैं बता चुका हूँ. लोकल लोग ज़्यादा familiar होते हैं अपने local government, अपने local leader से as compared to the state or the central government. They are also more concerned about what local government does or has failed to do, as it has direct bearing and impact on. जो लोकल पर्सन होता है वो कहीं ना कहीं ध्यान रखता है कि लोकल गवर्नमेंट क्या करती है. दे आर नॉट मोर कंसर्न अबाउट व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट इज डूइंग और व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग. उनका ध्यान नहीं होता है, वो न्यूज़ में देखते भी नहीं है. बट दे आर मोर कंसर्न कि जिस लोकल पंचायत को हमने इलेक्ट किया है, व्हाट आर द डेवलपमेंटल वर्क्स दे आर डूइंग फॉर अस. हमारी रोड बनी, वहाँ का पैसा आया, फाइनेंशियल सपोर्ट आया, काम शुरू हुआ है नहीं हुआ. तो लोकल पीपल आर मोर इन्वॉल्व कि उनकी जो ग्राम पंचायत उन्होंने इलेक्ट की है, जो सरपंच उन्होंने बनाया है, दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग और नॉट, कि वो लोग आराम से इलेक्ट होकर बैठे हुए हैं. तो वो उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं. तो ग्राम सभा का भी बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्राम सभा भी. ग्राम सभा में कौन होते हैं? ऑल द पीपल ऑफ द विलेज हु आर 18+ एज हु हैव द राइट टू वोट. देखो लास्ट में लिखा हुआ है, thus strengthening local government is like strengthening democratic process. अगर हम लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे अपनी, इट मींस हम किसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पीपल्स पार्टिसिपेशन. ठीक है, अगर हम अपनी डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो स्टेट सेंट्रल लेवल पे इतना पार्टिसिपेशन लोगों का देख नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या चलता है? हमारा इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ में स्टेट असेंबलीज में और पार्लियामेंट में बैठ के डिसीजन मेकिंग करते हैं. हम डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जा सकते हैं. बट एट द लोकल लेवल हम इस डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म बहुत आता है, एग्जाम में भी आ जाता है कि strengthening local government is like strengthening democratic process, justify the statement. तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट का क्या रूल है, क्या लॉ है, और लॉ का इसमें क्या रोल रहता है, क्यों ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है, क्या डिफरेंस है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में और लोकल गवर्नमेंट में. इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग होती जाती है. लोग अपने राइट्स का, अपनी रोल्स का, अपने फंक्शंस का ज़्यादा पता चलता है लोकल गवर्नमेंट के अंदर. ठीक है, आज इसको इतना ही रखेंगे. In the next class we will do this topic, growth of local government in India. उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे पहले लोकल गवर्नमेंट कैसा हुआ करती थी एंड आज कैसी है.